है। नहीं, बट कुड यू सी दैट लेक्चर? किसी ने देखा? लेक्चर है लेकिन मेरा डाउनलोड तो नहीं हुआ लास्ट लेक्चर। फिर डाउनलोड हुआ था। आई कुडंट सी दैट। डाउनलोड हुआ तो मुझे लिंक दे दो, भेज दो। एनीवे, ठीक है। वी स्टडीड लास्ट लेक्चर बायबैक ऑफ शेयर्स एंड रिडेम्पशन। ओके, मैं जरा नोट्स रीड कर लेता हूं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी स्टडीड लास्ट लेक्चर कि वी रिवाइज्ड प्रेफरेंस शेयर्स। दिस वाज अवर लास्ट ईयर कि प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड by complying following legal requirements. Number one, only fully paid preference shares can be redeemed. ये सब हमने बहुत अच्छी तरह से मर्सिडीज का एग्जांपल से सुना था। कोई लोग ये सेकंड वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप फर्स्ट वीडियो देखना, मजा आ जाएगा चैप्टर पढ़ने में। प्रेफरेंस शेयर्स कैन ऑल्सो बी रिडीम्ड out of fresh issue. Fresh issue can be of equity or preference shares, and face value of fresh issue is to be considered. Preference shares can be redeemed even without fresh issue by transferring free reserve, we call divisible profit, to CRR. Amount equal to face value of preference shares redemption is transferred. Partly fresh issue, partly CRR is allowed. If preference shares are redeemed at a premium, then premium on redemption is a loss to the company, which is written off to security premium or other free reserve. You know, CRR can be used only for issuing fully paid bonus share. Security premium खुद free reserve नहीं है. You can't transfer to CRR, but it can be used for writing off premium on redemption. फिर हमने सीखा था what are free reserves, what are not a free reserve. Free reserves is built out of business profit. It can be distributed as dividend. It can be transferred to CRR. Example of free reserve: general reserve, revenue reserve, dividend equalization reserves. Of course, P&L is divisible profit. Not free reserve is built out of non-business profit, cannot be distributed as dividend, cannot be transferred to CRR. They are capital reserve, revaluation reserve, PPI, certain specific reserve. Now ये specific reserve ऐसे तो business profit से बनता है, free reserve होता है, but क्योंकि वो specific काम के लिए बनाया गया है, we will call it non-divisible reserve. They are debenture redemption reserve until debentures redeem, statutory reserve until statutory profit over period over. Example of statutory reserve: investment allowance reserve, export profit reserve, foreign project reserve. इवन सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है। इतना करने के बाद हमने एक सम किया था। ओके, सम करने के बाद हमने बायबैक समझाया था। ओके, बायबैक की भी मैंने थियरी लिखाया था। क्या था बायबैक की थियरी? बायबैक और रिडेम्पशन करीब करीब सेम है विथ माइनर डिफरेंस। Companies allowed to buy back its shares, equity or preference, कोई भी, हाँ, after complying legal requirement. Only fully paid shares can be bought back. Number two, shares cannot be bought back. Shares can be bought back by fresh issue of shares. Fresh issue should be of other type of shares or security. Other type, not same. Huh? Only face value of fresh issue is to be considered. Shares can be bought back by transferring free reserve, including security premium, to CRR. Amount equal to face value of shares bought back is transferred to CRR. Partly fresh issue, partly CRR is allowed. If shares are bought back at a premium, then premium on redemption is a loss to the company, which is written off to security premium or any other free reserve. CRR can be used only for issuing fully paid bonus share. Only for the purpose of this chapter, security premium treatment is like a free reserve. They are allowed for transferring to CRR. By the way, रिडेम्पशन एंड बायबैक में तो फिर डिफरेंस क्या है? आंसर: रिडेम्पशन वर्ड प्रेफरेंस शेयर्स के लिए होता है, बायबैक किसका होता है? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स किसी का भी होता है। फुल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन बी रिडीम, मगर बायबैक इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ओनली पार्ट कैपिटल के लिए, ऑलवेज फॉर पार्ट कैपिटल। ये फुल कैपिटल, ये प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, ये इक्विटी और प्रेफरेंस किसका भी होता है। फ्रेश इश्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप, लेकिन ये बायबैक में अदर टाइप। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी ट्रांसफर टू CRR, बट यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी ट्रांसफर टू CRR। ठीक है, विद दिस बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड के साथ हम नेक्स्ट सम पर चलते हैं। आई होप आपने हार्ड कॉपी निकाल लिया है। इफ यू डोंट हैव हार्ड कॉपी, ठीक है, आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो राइट नाउ फोटो निकाल लो। इफ एनी ऑफ यू मिस्ड, आपको मेरा वीडियो नंबर 1 देखना है, ठीक है,
आप इसका क्वेश्चन का फोटो निकाल लो। इफ यू डोंट हैव क्वेश्चन, वीडियो देखने वाले इसको पॉज करके लिख के रखो। ओके, आई स्टार्ट। Shruti Limited resolved to buy back 3 lakh of its fully paid shares of 10 each at 12 per share. We want to buy back 3 lakh equity shares of 10 each at 12 per share. For that purpose, it issued 10,013% preference shares of 10 each at par. The total sum is payable on application. The company uses 9 lakh of its balance in security premium account apart from its adequate balance in GR to fulfill legal requirements. Past journal entry for the transaction involved in buyback. सुनना। So we want to buy back 3 lakh shares, 10 each at 12. Fresh issue preference shares at par. एंड हमारे पास ऑलरेडी 9 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम है, बाकी जनरल रिजर्व में बहुत है। जनरल एंट्री करिए। बताइए सम कैसे स्टार्ट होता है। पहला तो आप क्वेश्चन का कॉपी कर दिया, आई मीन डिड यू क्लिक द फोटो, और वीडियो देखने वाले पोस्ट करके वीडियो लिख दिया क्वेश्चन। क्या हम सम शुरू करें? बताइए सम कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं पता है ना, एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, ब्लैंक चार्ट बनाते हैं, जिसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे फॉर कंप्लाइंग लीगल रिक्वायरमेंट। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है, आप लोग भी स्टार्ट करिए। सबसे पहले ब्लैंक चार्ट बनाओ, ब्लैंक चार्ट स्टार्ट करिए मेरे साथ। यू नो फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, ओके, और प्रीमियम ऑन बायबैक। हम लीगल रिक्वायरमेंट के लिए चार्ट बना रहे हैं। फेस वैल्यू के लिए क्या रूल है, आइदर फ्रेश इश्यू करिए या क्रिएट सीआरआर करिए, ठीक है। प्रीमियम ऑन बायबैक कहां से लॉस राइट ऑफ करेंगे, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से और एनी फ्री रिजर्व। इतना करने के बाद आप लेफ्ट साइड फील करो, लेफ्ट साइड फील करो, फील इन द लेफ्ट साइड फील करो कि कितना शेयर्स बायबैक करना चाहते हैं। आप खुद ट्राई करो। आई जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड। Fill in the left side what number of share you would like to buy back. In every redemption of preference shares or buyback ये करते हैं हम। Right on the left side कि कितना शेयर्स बायबैक करना चाहते हैं। मैं बायबैक करना चाहता हूं 3 लाख इक्विटी शेयर, ओके, फेस वैल्यू 10, सो 30 लाख हो गया, ओके। 3 lakh shares of 10 at a premium of 2 per share. So premium बताइए, 3 lakh shares at 2 rupee premium, ओके। काम करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं और इसको नीचे की लाइन में लिखता हूं, वैसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 3 लाख इक्विटी शेयर्स 10, फेस वैल्यू लिखना है ना मुझे, इधर प्रीमियम लिखना है, ओके। अब फर्स्ट लेफ्ट साइड फील करो, क्या कोई फ्रेश इश्यू है ना, बताइए। लेफ्ट साइड फील करो, क्या कोई फ्रेश इश्यू है कितना, 10,000 प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each at par, 10,000 प्रीफरेंस शेयर्स 100 each at par, 10 लाख, 10,000 प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each at par, ठीक है। अब बचा और 20 lakhs, बताइए 20 lakhs कहां से यूज करें, सिर्फ ये चैप्टर में, एंड सिर्फ ये चैप्टर में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना अलाउड है।
जहां जहां भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना अलाउड है पहले ही यूज कर दो, पहले ही हमेशा यूज कर देने का, क्योंकि इसका बहुत लिमिटेड यूज है। जनरल रिजर्व, पीएनएल बैलेंस तो किधर भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ ये चैप्टर में सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउड है। तो भी 19 हो गया, अभी भी बैलेंस कितना बचेगा, 11 लाख, क्योंकि टोटल मुझे 20 लाख करना है ना। ये कोई स्टूडेंट ने ये सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे यूज किया है यहाँ तो भी अलाउड है, तो ऊपर जनरल रिजर्व आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट इज सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज करो। तो अभी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बचा क्योंकि मैंने ऊपर यूज कर दिया है, तो ये फुल 6 लाख जनरल रिजर्व से होगा। आप चाहे तो ऐसा कर सकते थे, नीचे 6 लाख यूज करो सिक्योरिटी प्रीमियम, ऊपर 3 लाख करो, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ ये है कि मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज करना है, बस। एक बार इतना हो गया तो आपका काम हो गया। इफ यू डन अप टू दिस, योर वर्क इज ऑलमोस्ट डन। बाद में तो पता है ना जर्नल एंट्री अपन कैसे करते हैं, वो तो तुम लोग एक्सपर्ट है उसमें। बताइए इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करने वाले हैं। हाउ आर वी गोइंग टू गेट द जर्नल एंट्री फॉर दिस, याद करिए। कैसे ट्रैवल करेंगे हम लोग, उर्दू में, उर्दू आई में। कॉल इट उर्दू में। ऐसा रिवर्स ऑर्डर में तुम ट्रैवल करेंगे ना, रिवर्स ऑर्डर में, आप रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल करो तो आपको जर्नल मिल जाती है। ऐसा पहले मैं ओरली बताएगा, फिर हम लोग लिखेंगे नोटबुक में। देखो जर्नल एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट रिवर्स में, जनरल रिजर्व डेबिट टू सियारा, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, अरे अपना बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर्स इश्यू। थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी होल्डर्स टू बैंक, बट इक्विटी होल्डर्स के लिए वर्ड इक्विटी शेयर बायबैक भी लिख सकते हैं। सो इक्विटी कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। बट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ कर देंगे, जनरल रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, दैट्स ऑल। सम खत्म हो जाएगा। सो ड्रॉ लाइन फॉर जर्नल एंड स्टार्ट कर दो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज की लाइन ड्रॉ करो एंड सम स्टार्ट कर दो। नंबर 1, सी देयर आर वेरी हाई चांस नेक्स्ट एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वेरी हाई चांस। जरूरी नहीं है कि कॉलेज खुल जाएगा, दैट इज नॉट ए केस। जैसे नरसिंह मंजी कॉलेज में ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, वो नॉर्मल कन्वेंशनल एग्जाम है। आप पेपर लिखेंगे, स्कैन करेंगे, पीडीएफ बनाएंगे, फाइल अपलोड करेंगे और जैसे हमको मिलता है वैसे मिलेगा, ये लाइक असाइनमेंट, एंड हम चेक करके मार देंगे। सो मुझे बहुत हाई चांस है कि नेक्स्ट एग्जाम मे नॉट बी ए ऑब्जेक्टिव, वेरी हाई चांस। वैसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट मैं मेरा आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि नरसिंह मंजी में वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो देयर इज नो रीजन वाई हम लोग क्यों नहीं करें ऐसा। Security premium debit, general reserves debit to CRR, being CRR created. जैसे ही चैप्टर खत्म हो गया, आपको असाइनमेंट क्रिएट करेगा, आपको सबमिट करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें कोई अभी टाइम एक्सटेंशन भी नहीं देने वाले हम लोग। वी हैव टू सबमिट विद इन लाइक 2 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ लेक्चर। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू CRR, फिर फ्रेश इश्यू कर दो। क्या नेक्स्ट एंट्री फ्रेश इश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10 lakhs,
being preference shares issued at par. Being preference shares issued at par. Being preference shares issued at par. Third entry. Equity share capital account debit. 30 lakhs. Premium on buyback debit 6 लाख. कोई लोग इधर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखते हैं, वो भी चलता है. सीए इंस्टीट्यूट ये वर्ड लिखती है, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, बट अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखा तो चलता है. सीए इंस्टीट्यूट ये पसंद करती है. बिंग 3 लाख equity shares of 10 each bought back at 12. बाद में पेमेंट करेंगे आप. क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, आई मीन इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक. और लास्ट एंट्री आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ करना होगा. ये प्रीमियम ऑन बायबैक जनरल रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन बायबैक. सो पेमेंट कर दो. इक्विटी शेयर buyback account debit to bank. Being equity share by being payment made लिखो ना. Being payment made. एंड लास्ट ये प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर दो. जनरल रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन बायबैक. Being premium on buyback written off. Okay. हो गया तो मुझे बोलिए. डन सर. 1/6 हो गया. यस सर. तो हम लोग आगे जाएंगे. सर 1 मिनट बस. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम.
हो गया? जल्दी बोलो। Yes, इसने sir. कर दिया है, डी फॉर डन कर दो, उसमें डी फॉर डन करो चैट में, आई अंडरस्टैंड आपका हो गया, आ गया। 38 स्टूडेंट ने कर दिया। ओके, वी गो फर्दर। अब आगे मेरी बात सुनो। फर्दर लीगल रिक्वायरमेंट, या तो फर्दर वर्ड निकाल डालते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम बायबैक। ये क्या है? इफ यू रिमेंबर, यदि आपको याद होगा तो हमने बोला था कि डिफरेंस बिटवीन प्रीफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन एंड बायबैक इज दैट प्रीफरेंस शेयर्स में फुल कैपिटल कैन बी बॉट बैक, आई मीन रिडीम्ड, लेकिन बायबैक में फुल कैपिटल इज नेवर अलाउड, ऑलवेज 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 एंड ऑलवेज ओनली पार्ट। तो अब क्वेश्चन है पार्ट कितना, पार्ट कितना? तो आंसर सुनिए। 3 लीगल रिक्वायरमेंट है, ऑल द 3 लीगल रिक्वायरमेंट्स शुड बी फुलफिल्ड। ओके, तो लीगल रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है? ओनली मैक्सिमम %25 of share capital can be bought back, never more than this, can be bought back। इससे ज्यादा कभी अलाउड नहीं है। Only 25% of share capital can be bought back। समझो I have got 1 lakh shares of 10 each, 10 lakh, तो मैक्सिमम 2,50,000 का कैपिटल I can buy back। Out of 1 lakh I can buy 25,000 shares of 10 each, उससे ज्यादा अलाउड ही नहीं है। ओके, सेकंड, बाद में हम चेक देंगे, शेयर होल्डर्स को चेक भी तो देंगे ना, तो चेक का अमाउंट, जिसको बोलता हूं बाय बैक अमाउंट, कैन नॉट एक्सीड, पता है चेक का अमाउंट क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय दैट बाय बैक प्राइस, तो उसको चेक का अमाउंट बोलता हूं। बाय बैक अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। थोड़ी शेयर होल्डर्स फंड देख लेंगे एक बार, बट बायबैक अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। इंपॉर्टेंट नोट, for open market buyback, ओपन मार्केट मतलब फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, इसको ओपन मार्केट बोलते हैं। इनफैक्ट लिस्टेड कंपनी हमेशा यही करती है। फॉर ओपन मार्केट द लिमिट इज 15% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। मतलब सपोज कंपनी ने बोला हम शेयर बाजार से शेयर बायबैक कर लेंगे, तो लिमिट इज 15% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। बट यदि कंपनी इंडिविजुअल शेयर होल्डर को कांटेक्ट करके बायबैक करती है विदाउट शेयर मार्केट, तो फिर लिमिट है 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। फॉर ओपन मार्केट द लिमिट इज 25%। Sorry, open market 15%, 1-to-1 25%। For open market from stock exchange, the limit is 15% of shareholders fund, otherwise 25%। क्वेश्चन है shareholders fund क्या होता है? What is shareholders fund? For this purpose, paid up equity capital
plus paid up preference share capital plus all फ्री रिजर्व्स। और ये चैप्टर में फ्री रिजर्व्स के अंदर कौन सा एक नॉन फ्री रिजर्व को अलाउड है, कर दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। तीसरा, आफ्टर द बायबैक debt equity ratio cannot exceed 2:1. After the buyback, debt equity ratio cannot exceed 2:1. इक्विटी वर्ड क्या, ये आफ्टर द बायबैक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इक्विटी वर्ड क्या होता है? इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड, already defined as above, ऑलरेडी डिफाइंड एज अबव। ऑलरेडी ऊपर मैंने शेयरहोल्डर्स फंड की डेफिनेशन दिया है ना, उसको इक्विटी वर्ड भी बोलते हैं कभी कभी। डेप्ट क्या होता है? डेप्ट में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैक्सिमम लोग कोई ओपिनियन के है कि इट शुड बी ओनली लॉन्ग टर्म डेप्ट, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर सम में सीए इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर करंट लायबिलिटी भी किया था, विच इज नॉट एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि डेप्ट हमेशा हम लॉन्ग टर्म लेते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो में, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बोथ। Debt equity ratio cannot exceed 2:1. Debt is long-term debt, secured and unsecured both. Remark: reserves are net reserve after deducting accumulated losses or fictitious asset. fictitious assets क्या होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एटसेट्रा। इनफैक्ट ये डिफॉल्ट है, ये तो डिफॉल्ट डेफिनेशन कोई भी चैप्टर में कि जब भी हम रिजर्व्स बोलते हैं तो उसका मतलब यही होता है, आफ्टर डिडक्टिंग accumulated losses and fictitious assets like preliminary expense etc. like discount on issue of shares, discount on issue of debenture, वो सब माइनस करने के बाद ही रिजर्व होता है। ये तो एक जनरल है। ये तो now all above, all three conditions should be satisfied। all, मुझे all the above three conditions satisfy करनी है। मतलब 25% कैपिटल से ज्यादा नहीं सॉरी 25% कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए बायबैक। मैं चेक का अमाउंट कांट एक्सीड 25% ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड, एंड आफ्टर द बायबैक इज ओवर माय डेब्ट इक्विटी रेशियो कैनॉट एक्सीड 2:1। मुझे ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। अब सपोज मैं एक बैलेंस शीट देता हूं और मैं आपको पूछता हूं भाई मुझे हमारी कंपनी के कुछ शेयर्स बायबैक करना है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, एंड मुझे 25 रुपीज में बायबैक करना है, 25 रुपीज 15 प्रीमियम के साथ, 10 फेस वैल्यू 15 प्रीमियम। बैलेंस शीट देने के बाद मैं पूछता हूं, यू बीइंग ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आई कैन बाय बैक? मैक्सिमम नंबर, आई रिपीट, मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, मैं थोड़ी
चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने तो इंटेलिजेंट सीए को नौकरी पर रखा है। मैंने बैलेंस शीट दिया, मैंने बोला है प्लीज टेक दिस बैलेंस शीट एंड आई वांट टू बाय बैक माय कंपनी का शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 है एट 15 प्रीमियम, मतलब 25 रुपीज पर शेयर। प्लीज इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप मुझे बता सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना बाय बैक कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि आपको ये 3 लीगल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होगी। तो मैं ऐसे प्रमोटर बोलेगा लीगल रिक्वायरमेंट वो सब तुम जानो, तुमको काय के लिए रखा, यू गिव मी द नंबर, हाउ मेनी शेयर कैन आई बाय बैक, नंबर, यू गिव मी द नंबर, क्योंकि मुझे पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। तो ये 3 लीगल रिक्वायरमेंट को हम नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, यही 3 लीगल रिक्वायरमेंट को। तो लेट अस कंटिन्यू, इसी के आगे कंटिन्यू करो। कैलकुलेशन ऑफ, नया नहीं है, पॉइंट यही है, बट उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ, यहां तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स company can buy back when buyback price is given. Calculation of maximum number of shares company buyback when buyback price is given. देखो कंडीशन वही है, कंडीशन नया नहीं है, बट मुझे उसको अभी नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप मुझे मदद करेंगे, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना है, आप मुझे मदद करो कि आई कैन नॉट बाय बैक मोर देन 25% ऑफ शेयर कैपिटल। तो मुझे नंबर बताओ, नंबर, मेरी पेड अप कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 लाख, नंबर बताओ। तो मैं कैसे नंबर में कन्वर्ट करूं, नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, क्या बता सकते हैं मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा। पता है मैं ऐसे करता हूं ना, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, तो अमाउंट मिलता है, जैसे मेरा 10 लाख रुपीस है, 25% 2.5 लाख, 2,50,000। मुझे नंबर बताओ, नंबर, क्या आप कोई चैट में लिख सकते हैं मैं नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करूं, अभी इसको फॉर्मूला में क्या और चेंज करूं। ये तो रुपीस मिला, मुझे नंबर चाहिए, नंबर। नहीं, 25,000 नंबर सही बताया आपने। तो अब इसमें क्या चेंज करूं, किससे डिवाइड करूं, वो लिख के बताओ, मुझे नंबर चाहिए, किससे डिवाइड करूं, आंसर लिखो, किससे डिवाइड करूं, आंसर लिखो, किससे डिवाइड करूं। सही जवाब है डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। सही जवाब है डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। जैसे कि एग्जांपल देखा ना आपने, 10 लाख मेरी कैपिटल है, आपने जब 25% किया तो 2.5 लाख मिला, ये रुपीस है, उसको 10 रुपीज फेस वैल्यू से डिवाइड किया तो 25,000 शेयर्स मिला, लाइक दिस, इस तरीके से। सो हम लोग ये जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, अच्छा ये नंबर फर्स्ट है ना, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट, मैंने हेडिंग देना चाहिए था, आप भी दे दो ना। पहली लीगल रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट, I should have given the heading number of shares test. Second, resources test.
मतलब कि मेरे पास उतना चेक का अमाउंट है तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स होता है पता है ना। मैं 25% शेयर होल्डर्स फंड से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकता हूं। Now, when I say I can't buy back more than 25% of shareholders fund, चेक का अमाउंट, तो उसमें मेरा नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा? आपको चॉइस देता हूं, क्या आप इसे फेस वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करेंगे या बायबैक प्राइस पर शेयर डिवाइड करेंगे? मेरा बायबैक प्राइस 25 रुपया है, 25 रुपीज है, फेस वैल्यू 10 है। किससे डिवाइड करेंगे? मुझे कैलकुलेट करना है हाउ मेनी शेयर्स कैन आई बाय बैक। तो आंसर है चेक का अमाउंट कांट एक्सीड 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। चेक में लिख के बता, मैं इसे फेस वैल्यू से डिवाइड करूं तो मुझे नंबर ऑफ शेयर मिलता है कि बायबैक प्राइस से डिवाइड करूं। मैगडा ने सही लिखा, इनफैक्ट सबने सही लिखा, इतना इंटेलिजेंट तुम लोग है मुझे नहीं मालूम था। सही बोल रहे आप बिल्कुल सही बोलते हैं। आपको बायबैक प्राइस से डिवाइड करना होगा। बायबैक प्राइस पर शेयर, बिल्कुल सही, वेरी सिंपल। सपोज मैं 25 लाख का चेक देने वाला हूं, आई वांट टू नो इसमें से कितना शेयर खरीद सकता हूं, डिवाइड बाय 25 बायबैक प्राइस। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। वेरी नाइस। तीसरा डेप्ट, यही कंडीशन वही है, खाली मैं नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करता हूं। डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब इधर समस्या आती है, इधर समस्या आती है। आई टेल यू क्यों समस्या आती है। ये रेशियो मुझे आफ्टर द बायबैक चाहिए, ये रेशियो मुझे आफ्टर द बायबैक चाहिए। मैं बैलेंस शीट में से डेप्ट लेता हूं, बैलेंस शीट लॉन्ग टर्म डेप्ट बोलते हैं ना, इक्विटी माने शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी माने शेयर होल्डर्स फंड। और ये जो रेशियो 2:1 चाहिए ना मुझे, ये सपोज ऐसा लिखा तो कोई माइक में से बताएंगे मेरी समस्या क्या है, ये क्यों नहीं चलेगा? सपोज मैं ऐसा लिखता हूं, डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, इक्वल टू नहीं चाहिए इधर, हेडिंग ये मेरा हेडिंग है, डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। सपोज मैं ऐसा लिखता हूं, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट बैलेंस शीट से लिया, इक्विटी बैलेंस शीट से लिया। बताओ, कोई बता सकते ये क्यों नहीं चलेगा? माइक में बोल के। डेप्ट बैलेंस शीट में से लिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बैलेंस शीट में से लिया, ये 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट ये क्यों नहीं चलेगा फिगर डेप्ट और इक्विटी का? कोई बता सकता है माइक में बोल के? माइक में बोल के किसी की हिम्मत नहीं है? सुनिए, डेप्ट बैलेंस शीट से लिया, इक्विटी बैलेंस शीट के लिए लिया, लेकिन मुझे डेप्ट इक्विटी रेशियो कब चेक करना है ये बताओ जल्दी से। कब चेक करना है? व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर द बायबैक कि आफ्टर द बायबैक? जल्दी से बोलो, व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम चेक करना है? आफ्टर द बायबैक चेक करना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसके लिए नहीं चलेगा। तो समस्या क्या आएगी? आई टेल यू समस्या क्या आएगी। सपोज मेरी बैलेंस शीट है, से कैपिटल है, हाँ, पेड अप कैपिटल, इक्विटी प्रीफरेंस जो भी है, पेड अप कैपिटल वी कॉल इट, जो हम बायबैक करने वाले हैं, और शेयर होल्डर्स फंड है, और इधर कुछ डेप्ट है, लोन 10 लाख, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिफोर बायबैक की पोजीशन है, ठीक है। अब मेरा डेप्ट में जनरली कोई बदलाव नहीं आने वाला है रेशियो में, लेकिन यहां बदलाव आएगा। बिफोर एंड आफ्टर में क्या फर्क पड़ता है? बिफोर एंड आफ्टर में क्या फर्क पड़ता है? कोई माइक में बोलो, ये अभी आप इसमें नहीं लिख सकते। बताइए, बिफोर एंड, सपोज प्रीफरेंस नहीं है समझने के लिए, खाली इक्विटी है, करण है क्या? करण बताओ, बिफोर एंड आफ्टर में क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई माइक में बता सकता है? कैपिटल में बिफोर एंड आफ्टर में क्या फर्क पड़ने वाला है? आंसर, मैं कुछ शेयर बायबैक करता हूं तो पता है मैं पर शेयर ये एंट्री करता हूं,
इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम जो मैं अल्टीमेटली राइट ऑफ कर देगा टू बैंक से 10 रुपया, 15 रुपीज 25। बताओ तो फर्क क्या पड़ा, बताओ फर्क क्या पड़ा। आंसर ये है, मेरी शेयरहोल्डर्स फंड कम हो जाएगी और शेयर 25 रुपीज कम हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर से। पता है मैं एंट्री करेगा इक्विटी कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू बैंक, मेरा पर शेयर कम हो जाएगी, मेरी इक्विटी कैपिटल कम हो जाएगी, प्रीफरेंस ये प्रीमियम कम हो जाएगा। ओके, नॉट ओनली दैट, जितना मैं इक्विटी कैपिटल पे करता हूं ना उतना मुझे सीआरआर क्रिएट करना होगा। ओके, तो अभी सुनिए, सो माइनस मैं नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने वाला हूं एंड पर शेयर 25 रुपीज कम हो जाएगा। डू यू एग्री? कितने लोग को ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि मैं इक्विटी कैपिटल पे ऑफ करेगा उतनी इक्विटी कैपिटल आउट हो जाएगी, प्रीमियम और रिडेम्पशन भी मैं पे करेगा तो मुझे राइट ऑफ करेगा तो उतना रिजर्व्स कम हो जाएगा। अभी भी कंप्लीट नहीं है। ये बात कितने लोग को समझ में आया? और चैट में वाई वर्ड लिखो समझ में आया तो। क्यों माइनस किया? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू बायबैक प्राइस। कितने लोग को समझ में आया? अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं बिफोर द बायबैक से आफ्टर द बायबैक पर जा रहा हूं। मैं बिफोर द बायबैक के रेशियो से आफ्टर द बायबैक जा रहा हूं। जब मैं बायबैक करता हूं, मैं एंट्री करता हूं इक्विटी कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू बैंक, तो मेरी इक्विटी कैपिटल कम हो जाएगी तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड कम हो जाएगा। प्रीमियम नाम का लॉस भी जाएगा तो उतना मेरा शेयरहोल्डर्स फंड भी कम हो जाएगा। सो इक्विटी कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों मिलाकर बायबैक प्राइस बोलते हैं। सो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू बीबीपी किया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वर्ड वाई? लिखो। नहीं लिखा, नहीं समझ में आया, एन वर्ड लिखो। ये लॉजिक समझा रहा हूं, वरना मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला ही दे सकता था स्ट्रेट वे। नहीं समझ में आया एन लिखो, समझ में आया वाई लिखो। अभी कंप्लीट नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। मैं बिफोर द बायबैक रेशियो, बैलेंस शीट में बिफोर द बायबैक पीरियड का रेशियो होता है, तो मैं आफ्टर द बायबैक पर पहुंच रहा हूं। डेप्ट अपॉन इक्विटी लिखा, जैसे ही मेरा बायबैक पूरा हो गया मैंने एंट्री कर दिया इक्विटी कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू बैंक। सो 10 रुपीज कैपिटल कम हो जाएगी तो कैपिटल फंड शेयरहोल्डर्स फंड कम हो जाता है। 15 रुपीज प्रीमियम भी मतलब लॉस हो गया तो वो भी शेयरहोल्डर्स फंड कम हो गया। पर शेयर 25 रुपीज, 10 प्लस 15 आउट हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू बीपीपी। न किसी ने यस वर्ड लिखा है ना नो लिखा है। नो मतलब नहीं समझा, यस मतलब समझा। कुछ नहीं लिखा है, छोड़ो। माइक में तो बोलो, एक जन तो बोलो। ये सब भाग गए। ओ समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब और एक काम करना है। पता है क्रेडिटर लोग ये बायबैक की परमिशन कभी नहीं देंगे। क्रेडिटर लोग थोड़ी बायबैक की परमिशन देते हैं। तो अब क्या करना होगा? जितनी पेड अप कैपिटल हम पे करते हैं उतना सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है ना। जैसे ही फ्री रिजर्व को मैंने सीआरआर में ट्रांसफर किया, सीआरआर खुद तो फ्री रिजर्व नहीं है। आई रिपीट, सीआरआर खुद फ्री रिजर्व नहीं है। जब फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करता हूं तो मेरा शेयरहोल्डर्स फंड नॉन फ्री रिजर्व बन जाता है। मुझे शेयरहोल्डर्स फंड की डेफिनेशन में ओनली फ्री रिजर्व लिखना होता है। तो जितना पेड अप कैपिटल में बायबैक करता हूं, जितना पेड अप कैपिटल में बायबैक करता हूं उतना उतना फ्री रिजर्व नॉन फ्री रिजर्व में माइनस कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोलो क्या लिखूं, माइनस क्या करूं? जितनी पेड अप कैपिटल में बायबैक करता हूं उतना फ्री रिजर्व मुझे सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो ही मुझे क्रेडिटर पे ऑफ करने की, डिबेंचर होल्डर पे ऑफ करने की मुझे परमिशन देते हैं। तो कुछ फ्री रिजर्व को मैं सीआरआर में कन्वर्ट करता हूं, मतलब फ्री रिजर्व नॉन फ्री रिजर्व में हो जाता है। और यहाँ शेयरहोल्डर्स फंड की डेफिनेशन में मुझे आफ्टर द बायबैक ओनली फ्री रिजर्व करना है। तो जितना पेड अप कैपिटल में बायबैक करता हूं उतना मैं सीआरआर करता हूं। तो मैं क्या लिखूं? ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट? कोई बता सकता है क्या लिखूं? मुझे पेड अप कैपिटल बायबैक करनी है, वो वर्ड लिखना है मुझे, क्योंकि वो ट्रांसफर टू सीआरआर है। दिस इज नथिंग बट ट्रांसफर टू सीआरआर। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट? एक भी आंसर नहीं आया। मुझे पेड अप कैपिटल इज टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर लिखना है। जितनी पेड अप कैपिटल उतना सीआरआर बनता है। तो नंबर ऑफ शेयर इनटू व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट? ओके, आई विल गिव यू अ चॉइस, फेस वैल्यू और बीबीपी। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट? मैं क्या कर रहा हूं? जितना पेड अप कैपिटल मैंने पे ऑफ करना है, क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर मुझे परमिशन नहीं देंगे, बोलेंगे तुम फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करो।
जैसे ही फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, मेरा शेयर होल्डर्स फंड का फ्री रिजर्व फ्री कम हो जाएगा। यहाँ शेयर होल्डर्स फंड में मुझे ओनली फ्री रिजर्व लेना है। सो नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू की नंबर ऑफ शेयर्स इनटू बीबीपी, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अरे ब्रिलियंट है तुम लोग सब, वेरी गुड। दिस इज नथिंग बट transfer to CRR, and transfer to CRR is nothing but your paid up capital paid off. बस अब solving this you will get number of share. Okay, अब मेरी बात सुनना, solving this you will get the number of share. अब पॉइंट है कि मुझे तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। क्या बोला मैंने? ये ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इधर मुझे है ना, ये इक्वेशन सॉल्व करके आपको मिलेगा। नाउ जब मुझे ऑल द थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, सपोज इसका आंसर आया 10,000 शेयर, इसका आंसर आया 12,000 शेयर, इसका आंसर आया 9,000 शेयर, तो बताओ ये 10, 12 और 9 चैट में लिख के बताओ, हाउ मेनी शेयर कैन आई बाय बैक? फर्स्ट का आंसर आया से 10,000 शेयर, सेकंड का आंसर आया से 12,000 शेयर, थर्ड का आंसर आया 9,000 शेयर। टेल मी हाउ मेनी शेयर कैन आई बाय बैक? मुझे ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, एक भी कंडीशन टूटेगी तो नहीं चलेगा। सो आंसर 12 लिखूं, 10 लिखूं कि 9 लिखूं? 9, ब्रिलियंट। सो whichever is less, तीनों में से जो whichever is less है ना, उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर आप बायबैक कर सकते हैं, उतना मैक्सिमम, बिकॉज आपने 9,000 से ज्यादा किया तो सेकंड थर्ड कंडीशन टूट जाएगी। या आप लिख डालो, ये बहुत सीए जो करते हैं ना, कम टीचर को ये फॉर्मूला ऐसा इतनी सिंपल तरीके से लॉजिक से आती है, वो लोग सब है ना एकदम साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करते हैं एक्स एंड वाई। ये अपना इजीएस्ट वे है, आप देखेंगे अभी सम करेगा। दिस इज द इजीएस्ट वे। ये डेब्ट इक्विटी रेशियो में सीएस स्टूडेंट का कोचिंग क्लास है ना, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्स एंड वाई यूज करते हैं, कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। लिख दिया? चलिए अब हम सम पर करते हैं। अब हम सम लेंगे और सम में हम चेक करेंगे कि कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर यू वांट टू बाय बैक मैक्सिमम। आपको एकदम आराम से इजी जाएगा। क्लियर? Excuse me, sir. हाँ, Can you repeat again the debt equity ratio test? पूरा डेप्ट इक्विटी तुम लेक्चर में थे या नहीं थे? Sir, था। ओके, हमको डेप्ट इक्विटी रेशियो कब चेक करना है? ये मैं थर्ड वाला पॉइंट रिपीट करता हूँ। कब चेक करना है? बिफोर द बायबैक और आफ्टर द बायबैक? मैं इधर रिपीट करता हूँ, ये मैं बैलेंस शीट से उठा रहा हूँ, बैलेंस शीट से, इक्विटी माने शेयर होल्डर्स फंड, ये फिगर दोनों बैलेंस शीट से बिफोर द बायबैक वाले हैं। बोलो ये क्यों नहीं चलेगा? फटाफट बोलिए, नीचे में क्या प्रॉब्लम है? ये बिफोर द बायबैक है, आपको कब का चाहिए? जल्दी से बोलो, साधु माइक ऑन करो, आपको कब का चाहिए? Sir, हाँ, डेब्ट इक्विटी रेशियो की कंडीशन क्या थी? डेब्ट इक्विटी रेशियो की कंडीशन क्या है? ratio should not exceed 2:1. कभी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बोल नहीं रहे तुम, मैंने अंडरलाइन किया, वो बोल नहीं रहे, यू आर नॉट टॉकिंग। After the buyback, after the हाँ, ये आफ्टर द बायबैक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ, ये जो डेब्ट इक्विटी है वो कब का है? Sir, ये before का है। हाँ, तो बिफोर द बायबैक एंड आफ्टर द बायबैक के बीच में क्या हो रहा है? अरे कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिफोर द बायबैक एंड आफ्टर द बायबैक के व्हाट हैपेंस इन बिटवीन? इन बिटवीन बायबैक हैपेंस। क्या बोला? Yes, sir. तो जब Buyback बायबैक happens. होता है तो कुछ फिगर कम हो जाएंगे, अभी ये फिगर डाउन हो जाएगा। Yes, sir. कितने से डाउन हो जाएगा? तो आंसर, आई एम पेइंग ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ 10, आई एम पेइंग ऑफ प्रीमियम ऑफ 15। सो बताओ पर शेयर कितना अमाउंट डाउन हो गया इसमें से? पर शेयर जल्दी बोलो ये फिगर के साथ, कितना डाउन हो गया? अभी जल्दी बोलो ना यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे पर शेयर, ये बिफोर शेयर होल्डर्स का फंड में से पर शेयर हाउ मच इज रिड्यूस्ड बताओ, क्योंकि कैपिटल वेंट आउट, प्रीमियम एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, 25 का डाउन हो गया ना पर शेयर।
अरे बोलो। यस सर 25 हो गया। यस सर। इसको क्या बोलते हैं? 25 का नाम क्या है? बाय बैक पीरियड। बायबैक प्राइस। प्राइस। ओके, सो टोटल कितना डाउन हो गया? टोटल, ये तो पर शेयर हुआ। टोटल टेल मी हाउ मेनी डाउन टोटल? नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर, उतना डाउन हो जाएगा ना, कैपिटल एंड प्रीमियम। एग्रीड? यस सर एग्रीड। ओके, लेकिन शेयर होल्डर को बायबैक अलाउ ही नहीं करेंगे, डिबेंचर होल्डर ने मना कर दिया है, बोलता हम नहीं करेंगे, तो उसका ऑब्जेक्शन ओवररूल करने के लिए क्या करना चाहिए? दे से वी डोंट वांट टू गिव यू परमिशन। पता है ना हमको सीआरआर क्रिएट करना होगा। यस और नो? यस सर। तो जितना मैं फ्री रिजर्व सीआरआर में करेगा, वो ये नॉन फ्री रिजर्व है, तो उतना मेरा शेयरहोल्डर्स फंड का फ्री रिजर्व भी डाउन हो जाएगा, बिकॉज शेयरहोल्डर्स फंड बाय डेफिनेशन इज ओनली फ्री रिजर्व। डू यू अग्री? यस सर। ओके, तो कितना सीआरआर करना पड़ता है? जितनी कैपिटल में पे ऑफ करता हूं उतना, दैट इज नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। दिस इज नथिंग बट द सीआरआर। सीआर। क्लियर? अभी समझ में आया लॉजिक? यस सर आ गया। एंड नंबर ऑफ शेयर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? नो इश्यू, पूछने का, बिंदास पूछने का, नॉट टू वरी। आई सेड नो कोचिंग क्लासेस यूजेस दिस सिंपल वे। उन लोग क्या करते हैं पता है? दे यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्स एंड वाई, यहाँ थर्ड स्टेप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे, आप देखेंगे। अब मैंने बोला कि हम एक सम करेंगे, आपका जो छोटे मोटे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन रीड करो। आपके पास क्वेश्चन है तो अच्छा है, नहीं है नहीं है तो आप फोटो निकाल लो। नहीं है तो आप एक फोटो निकाल लो। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। नहीं है तो आप फोटो निकाल लो। क्लियर? बैलेंस शीट दिया है, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक एंड ऑल, करंट असेट, इक्विटी कैपिटल, प्रीफरेंस कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर एंड अनसिक्योर्ड लोन भी है एंड करंट लायबिलिटी भी है। क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कंपनी कैन बाय बैक इफ द बायबैक इज एट पार। पार मतलब 10 पर। बायबैक इज एट ए प्रीमियम ऑफ 10 एंड बायबैक इज एट 50 पर शेयर। एक काम करता हूं मैं, सेकंड एंड थर्ड कर देता हूं, फर्स्ट आप कर देना। सो बायबैक प्राइस कितनी होगी? बीबीपी इधर, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 10, तो 20 हो जाएगा। इधर बताओ बायबैक प्राइस कितना है? डायरेक्टली दे दिया है, बीबीपी इज 50। क्या पहले में बता सकते हैं व्हाट इज माय बीबीपी? बायबैक इज एट पार, तो जल्दी बोलो ना। बायबैक इज एट पार तो बायबैक प्राइस 10 है। बायबैक इज एट ए प्रीमियम ऑफ 10 तो 10 + 10 20 है। बायबैक इज एट 50। मैं आपने क्वेश्चन कॉपी कर दिया होगा। अभी मैं स्टार्ट कैसे करेगा? मैं हमारा शेयरहोल्डर्स फंड कितना मैं नोटबुक में लिख के रखेगा, इक्विटी, प्रीफरेंस एंड रिजर्व्स। फिर डेप्ट कितना है लिख के रखेगा। फिर हम मैथमेटिकल सब जो भी करना है कैलकुलेशन करेंगे एंड विल कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर वी कैन बाय बैक। क्लियर? चलिए अब हम, आई होप आपने क्वेश्चन कॉपी किया था। व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। उसमें सेकंड क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ, आप भी लिखना स्टार्ट करो, बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एट बायबैक प्राइस। बोलिए, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज इट? बायबैक प्राइस, जल्दी बोलो। बताओ जल्दी से, बायबैक प्राइस कितना है? 10 रुपीज प्रीमियम, तो टेल मी व्हाट इज बायबैक प्राइस? 20. So calculation of buyback of maximum number of shares at buyback price 20. Calculation of buyback of maximum number of shares at buyback price 20. 10 रुपीज प्रीमियम था ना, that way 20 हो गया। क्लियर? ओके,
अब आंसर पर आते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट, बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ शेयर्स हम मैक्सिमम खरीद सकते हैं? टेल मी द फॉर्मूला। आंसर इज 25% ऑफ शेयर कैपिटल। तो मैं क्या करेगा, 25% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। वाई द वर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल? क्योंकि मैं वो बायबैक कर रहा हूं। यदि मैं प्रीफरेंस बायबैक करेगा तो 25% ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। नहीं, ये लिखने के पहले आई शुड हैव केप्ट रेडी, ये बाद में करना। ये कैलकुलेट हेडिंग थी है, ठीक है। क्या मैं कैलकुलेशन में रेडी करके रखूं, बिकॉज हमको वो यूज करना है। व्हाट थिंग्स शुड आई कीप रेडी? क्या मैं रेडी करके रखूं, क्योंकि मुझे यूज करना पड़ेगा बार बार फिगर। ओके, शेयरहोल्डर्स फंड रेडी करके रखो ना क्वेश्चन से। इसमें क्या आएगा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, बिकॉज वी हैव टू यूज दिस अगेन एंड अगेन, इसके लिए मैं पहले ही रेडी करके रखता हूं। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। ये ऐसा कुछ नहीं, बाद में भी कर सकते थे, बट ये पहले रेडी करके रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा ना। देन आई डोंट हैव टू वर्क अगेन एंड अगेन ऑन दिस। बाद में हम एक्चुअली इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। बोलिए, लुक एट द क्वेश्चन। शेयरहोल्डर्स फंड एंड डेप्ट वर्कआउट करके रख दो। इक्विटी कैपिटल बताइए, 20 lakhs। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 5 lakh। बताओ फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? चेक योर क्वेश्चन। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 lakh है। जनरल रिजर्व 50 lakh है। P&L बैलेंस 6 lakh। तो टोटल कितना हो गया? टेल मी द टोटल। ये मेरा शेयरहोल्डर्स फंड हो गया। दिस इज अवर शेयरहोल्डर्स फंड। 20, 20 plus 5, 25 plus 2, 27 plus 50, 27 plus 6. Is this 83 lakh? बताओ, is this 83 lakh? Yes. अब डेप्ट कैलकुलेट करके रखो। What is debt? लॉन्ग टर्म डेप्ट। वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कुछ भी चलता है। एक है डिबेंचर और दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। डिबेंचर्स आर 30 lakhs। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो इक्वेशन यूज करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एट मैक्सिमम प्राइस। वो 3 इक्वेशन यूज करेंगे। ये हमने वर्किंग में रेडी करके रख दिया, उसी के नीचे लिखते जाना है आपको। फर्स्ट, नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर आई कैन बाय बैक? तो आंसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 25% paid up equity share capital। इक्विटी बिकॉज आई एम बाइंग बैक इक्विटी, नहीं तो प्रीफरेंस बाय बैक करता हूं तो प्रीफरेंस फेस वैल्यू पर शेयर। बताइए
इक्विटी कैपिटल कितना है? So this is my maximum number of share I can buy back. My equity capital is 20 lakh and my face value is 10 per share. आंसर बताओ कितना हुआ? As per first condition, I can buy back 50,000 shares. Resources test. ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? सपोज हमारा कन्वेंशनल पेपर है, मतलब 15-15 मार्क्स क्वेश्चन यू टू सॉल्व, तो ये सब कैलकुलेशन करके जर्नल एंट्री पूछते हैं. ऑब्जेक्टिव है तो खाली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पूछ सकते हैं. रिसोर्सेज टेस्ट में रूल क्या है? मेरा चेक का अमाउंट कांट एक्सीड 25% ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड. माय चेक का अमाउंट कांट एक्सीड 25% ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड. पता है ना? ऑफ कोर्स नीचे कुछ लिखेगा. 25% ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड इज कितना आता है? 25% ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड यू नो कितना आता है? 83 लाख इंटू 25% कम्स 20,75,000. मगर मुझे तो नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए. ये आता है 20,75,000. ये तो रुपीस हुआ. मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए. तो मुझे हाउ मेनी शेयर? तो आंसर है पर शेयर हाउ मच यू आर पेइंग. आई से पर शेयर आई एम पेइंग 20 रुपीस. तो व्हाट इज दिस 20 रुपीस? तो आंसर इज बायबैक प्राइस. तो आंसर आता है, कैन यू टेल मी आंसर कितना आता है? 1 लाख. अब ये नंबर ऑफ शेयर बन गया. इतने शेयर्स, सो मेनी शेयर्स आई कैन बाय बैक. फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आई कैन बाय बैक 50,000 शेयर. सेकंड कंडीशन के हिसाब से आई कैन बाय बैक 1,03,750. थर्ड कंडीशन क्या है? डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट. व्हाई डोंट यू ट्राई योर ओन? मुझे डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट ट्राई करके दो. आफ्टर द बायबैक माय डेप्ट इक्विटी रेशियो कांट एक्सीड 2:1. आफ्टर द बायबैक get me this. Get me this. याद करिए मैंने कैसे किया था. डेप्ट अपॉन इक्विटी. इक्विटी इज नथिंग बट योर शेयरहोल्डर्स फंड. बट ये रेशियो तो बिफोर द बायबैक का है. तो इसमें से आफ्टर द बायबैक जाना है तो बीच में क्या हो जाएगा? मेरा नंबर ऑफ शेयर आउट हो जाएगा. मेरा बायबैक प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था. फिर नंबर ऑफ शेयर इनटू दैट बायबैक प्राइस. उतनी कैपिटल कम हो जाएगी, इतना प्रीमियम नाम का लॉस हो जाएगा. देन व्हाट? फिर मुझे सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, वरना मुझे शेयरहोल्डर परमिशन नहीं देंगे. ये कितना होता है? तो आंसर जो पेड अप कैपिटल बायबैक करता हूँ, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू. ये आंसर है. बस दिस इज हाउ आई हैव रिमेंबर्ड. मैं आपको रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ. मैं ऐसा बोलता हूँ मैंने याद कैसे रखा है फॉर्मूला लॉजिक से, कि मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो बिफोर द बायबैक से आफ्टर द बायबैक में कैसे जाता हूँ. बाय सॉल्विंग दिस आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना होता है. बाय सॉल्विंग यू टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर. डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट. डेप्ट माने लॉन्ग टर्म डेप्ट. अभी अभी आपकी नोटबुक में लिखा है 75 लाख. इक्विटी माने शेयरहोल्डर्स फंड. नंबर ऑफ शेयर कितना है? से एक्स, वही तो फाइंड करना है ना. नंबर ऑफ शेयर्स एक्स, वही तो फाइंड करना है. बायबैक प्राइस इज 20. नंबर ऑफ शेयर एक्स, फेस वैल्यू 10 इक्वल टू 2:1. गेट द वैल्यू ऑफ एक्स बाय सॉल्विंग. अब ये मेरे से डोंट एक्सपेक्ट मी
कि x की वैल्यू कैसे आएगी। सॉल्व करके मुझे चैट पर लिख डालो x कितना आता है। नहीं आता है तो घर पे चले जाना, पढ़ाई बड़ाई बंद कर देना। ये लाइफ में तुम FIB कॉम अकाउंट का पास नहीं होंगे मैथ्स। इफ यू कांट सॉल्व दिस, MBA सोचना मत। ये सॉल्व करना नहीं आता है, पढ़ाई छोड़ के धंधे में लग जाना, CA को नौकरी पर रख लेना, योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। गेट मी द वैल्यू ऑफ x। चलो, बाय सॉल्विंग गेट मी द वैल्यू ऑफ x। चैट पर लिख डालो। चलो चैट में लिखो x की वैल्यू, सो दैट आई विल गो फर्दर। Get me the value of x. Anybody got it? कितना आया? सबका यही आंसर है? सबका 151,666 है? मुझे नहीं मालूम है। एवरीबडी माइक में बोलो जरा। आपने ये बोला है तो मैं लिखता हूँ, मेरा कुछ नहीं जाता है। 151 आई एज्यूम करता हूँ कि राइट है आपका। ओके, अब मेरी बात सुनना। जब ऐसा होता है ना, सोच के आंसर देना। मैं 667 लिखूं या 666 लिखूं? सोच के आंसर देना। लोअर, व्हाई नॉट 667? सोच के आंसर बोल सकते कोई माइक में? माइक में बोल सकते कोई व्हाई नॉट 667 किया मैंने? आंसर ये है, सपोज मैं इधर 7 लिखता हूं ना, तो 0.33 के लिए मेरी कंडीशन टूट जाएगी। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? नॉर्मल मैथमेटिकल रूल समझ गया हूं मैं कि 666.6 है तो हम राउंड ऑफ टू 667 करते हैं। बट प्रॉब्लम है कि मेरी लीगल रिक्वायरमेंट की कंडीशन टूट जाती है। मेरी कंडीशन 151,666.66 पर होती है। द मोमेंट 66 से एक्सीड होता हूं तो मेरी कंडीशन टूट जाती है। तो आई हैव टू गो टू राउंड ऑफ टू लोअर। बी वेरी केयरफुल यहाँ, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट पॉइंट इन्वॉल्व है। सो आई हैव टू राउंड ऑफ टू द लोअर। ठीक है, ओके। ये ए 50,000, बी 103, सी 151,666। तो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? लोअर ऑफ अबव या whichever is less. So what is my conclusion now? बताओ चैट में लिखो, अल्टीमेटली कंपनी कितना शेयर खरीद सकती है? आंसर, कंपनी कैन बाय बैक मैक्सिमम, तीनों में से लोअर, 50,000 इक्विटी शेयर्स of 10 at buyback price ₹20. That's a final answer. Okay, हमारा जो ट्रेडिशनल सम यहाँ से स्टार्ट होता है कि पेपर में देते हैं कंपनी वांट्स टू बाय बैक 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो बाद में होता है, बट हमने बिफोर जर्नल एंट्री पहला डिसाइड किया है कि मैक्सिमम बायबैक में कितना कर सकता हूँ। अब सेम क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं कि यदि मैं 20 रुपीज मेरी बायबैक प्राइस है तो मैं 50,000 शेयर खरीद सकता हूँ। बट यदि मैं बायबैक प्राइस चेंज करके 50 रुपीज करना चाहता हूँ, अब बताओ मेरा प्रॉब्लम में कहाँ चेंज आएगा? सो लेट्स रीडू ऑल अगेन, लेट्स रीडू ऑल अगेन। अब मुझे बायबैक प्राइस 20 करना है। सो कैलकुलेशन ऑफ बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एट बायबैक प्राइस 50 करना है। हाँ, शेयरहोल्डर्स फंड यही रहता है, डेप्ट यही रहता है, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट से मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, लेट अस स्टार्ट अगेन। अभी स्टार्ट करो। कैलकुलेशन ऑफ बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर
at buyback price 50 at buyback price 50. चलिए, so let's do all again. सब कुछ वापस कर दो. Number 1, number of shares test. So what are the number of shares I can buy back maximum? Answer 25% of paid up equity capital. क्योंकि इक्विटी बायबैक कर रहा हूं, प्रीफरेंस है तो प्रीफरेंस लिखेगा, डिवाइड बाय फेस वैल्यू. सेम, खाली बायबैक प्राइस चेंज होता है, बाकी तो कोई चेंज है ही नहीं. क्या मैं आपको 2 मिनट दूं? वुड यू लाइक टू डू इट योरसेल्फ? कम ऑन, आई एम श्योर यू कैन डू इट. गिव मी द आंसर. इनफैक्ट पहले में तो चेंज ही नहीं होता है. पहले में चेंज नहीं होता है. सो 25%, 20 लाख रुपीस, फेस वैल्यू 10, 50,000 इक्विटी शेयर. ये सबका सेम है. सेकंड विल चेंज नाउ बिकॉज बायबैक प्राइस चेंज हो गया है. सो अच्छा, किसी को पता है 25%? पहले में तो हमेशा 25 है, सेकंड में 25 का 15 कब होता है पता है किसी को? सेकंड में, फर्स्ट में कभी नहीं है. आंसर जब ओपन मार्केट स्टॉक एक्सचेंज बायबैक होता है ना, शेयर बाजार से स्टॉक शेयर्स खरीदते तो 15% है अपॉन बायबैक प्राइस. सो ये इधर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू शेयरहोल्डर्स फंड. इफ आई रिमेंबर कितना था शेयरहोल्डर्स फंड? 83 lakhs है. और बायबैक प्राइस अभी कितने रुपीस लेना है? मेघना ने सबसे पहले आंसर दिया. लेट मी चेक आउट राइट है कि गलत है. नहीं मेघना, आप चेक करो कि मेरे को कुछ गड़बड़ दिखता है. मेघना चेक प्रॉपर्ली. दैट्स राइट है मेघना, 41 फाइन. चेक करो, कोई लोग ने आंसर दिया नहीं है. आयुषी राइट है, सब लोग राइट है करीब करीब. आयुषी प्लस 30 स्टूडेंट राइट है, बिल्कुल सही, वेरी गुड. तीसरा डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट. थर्ड, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट. आंसर डेब्ट अपॉन इक्विटी. पहला तो लिखता हूं, इक्विटी माने शेयरहोल्डर्स फंड ना, याद रखना. ठीक है, ये जो है ना, ये तो बिफोर द बायबैक है. तो क्या करता हूं, तो जितना मैं नंबर ऑफ शेयर बाय करने वाला हूं, कैपिटल प्लस प्रीमियम, उतना मेरा शेयरहोल्डर्स फंड डाउन हो जाएगा. लेकिन डिबेंचर होल्डर मुझे परमिशन नहीं देंगे, तो मैं बोलेगा चिंता मत करो, मैं ट्रांसफर टू CRR करेगा. सो गिव मी द परमिशन. अच्छा, कितना CRR करना है? अरे भाई जितना कैपिटल पे करता हूँ उतना.
कितना कैपिटल पे करता हूँ? अरे भाई मेरा नंबर ऑफ शेयर कितना है इनटू फेस वैल्यू पर शेयर कितना है। अब डिबेंचर होल्डर को ऑब्जेक्शन नहीं है। सो दिस इज हाउ आई रिमेंबर इट। बोलिए डेप्ट कितनी है? डेप्ट आई थिंक सो 75 लाख है। इक्विटी 83 लाख है। नंबर ऑफ शेयर वही तो कैलकुलेट करना है, से एक्स, बायबैक प्राइस 50, नंबर ऑफ शेयर्स एक्स, फेस वैल्यू 10, मेरा फीस इधर खत्म होता है। गेट मी द वैल्यू ऑफ एक्स। आई एम श्योर यू कैन डू इट। नहीं कर सकते तो सीए को नौकरी पर रखना, हम बिजनेस करेंगे। बहुत सारे लोग ने सही जवाब दे दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गेट मी। All right. Lower of all above. What is lower of all above? फर्स्ट का आंसर आ गया था 50, सेकंड का 41,400, थर्ड का 75। So what is my conclusion? Company can buy back maximum कितना? 41,400 equity shares of 10 each at buyback price of ₹50 each. ये मेरा कंक्लूजन है। दिस इज अवर कंक्लूजन। क्या थर्ड भी करना चाहते हैं? फर्स्ट वन मतलब कि जहां बायबैक वाज एट पार, वो भी कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, कर दो ना। पहला ये कौन सा वाला था पता है ना? क्वेश्चन 5.3 था, उसके पहले 5.2 था। 5.1 कर दो, बायबैक प्राइस इज एट पार, सेम मेथड। पता है इसका चार्ट कैसे बनता है? चार्ट बनाना है ये इसका, एज इफ आई एम डूइंग दिस सम। हाँ, प्रैक्टिस। सेवा, सेवा, सेवा मतलब नॉट आस्क्ड। अभी करो ना। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक। चलो कुछ सेवा कर देते हैं। फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू, CRR, इधर सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। पहला हमेशा लेफ्ट साइड फील करो कि मुझे 41,400 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच बायबैक करना है एट 50 रुपीज, मतलब 40 रुपीज प्रीमियम है, याद रखना। लेफ्ट साइड फील करो, सेवा कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसमें आगे जाएंगे। ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर में तो ये चैप्टर ही। So 41,400 shares into face value 10 and premium कितना है? 41,400 shares into premium 40 रुपीस है।
बायबैक प्राइस 50 है, तो ये हो जाएगा 4,15,000 और ये हो जाएगा 16 लाख कितना 60,000। चेक कर लो 41,500 मल्टीप्लाई बाय 40 1660। ठीक है, क्या फ्रेश इश्यू दिया गया है? नील। तो पूरा 4,15,000 कहां से आएगा? फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, वहां चलेगा। ये भी कहां से राइट ऑफ करेंगे? वही फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जर्नल एंट्री उर्दू में करिए। बस जर्नल एंट्री में ओरली बोलूं तो इट इज लाइक दिस। जर्नल एंट्री फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सीआरआर, फ्रेश इश्यू तो नहीं है। इक्विटी कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन बायबैक। सिंपल कर दो, सेवा कर दो। चलो एंट्री भी कर ही देते हैं ना, एंट्री भी कर ही देते हैं। चलिए सेवा कर दो। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फ्री रिजर्व्स, नाम नहीं दिया है ना इसके लिए, नेम इज नॉट गिवन, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू सीआरआर 4,50,000। सेकंड, फ्रेश इश्यू भी नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स लिख सकते हैं या तो इक्विटी शेयर बायबैक लिख सकते हैं। सी इंस्टीट्यूट इक्विटी शेयर बायबैक लिखती है, बट इक्विटी शेयरहोल्डर्स भी आई एम ओके विद दैट। मेक पेमेंट, equity share buyback account debit, which means equity shareholders account debit to bank, and lastly प्रीमियम ऑन बायबैक मुझे राइट ऑफ करना है। कहाँ कहाँ भी? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूडिंग फ्री रिजर्व।
ठीक है, ये वाला सम खत्म हुआ। लिख दिया। आप, आई होप यू रिटन इट। वीडियो देखने वाले वीडियो को स्टॉप करके पोस्ट करके लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।